Good morning, dear student. I, Dr. Manisha Jutode, welcome you all on our YouTube channel. In our previous videos, we start our syllabus, that is Unit 3rd, Polymer Chemistry. Under the heading of Polymer Chemistry, we start the introduction of polymer. In that, we discuss about the definition of polymer, polymerization, and monomer. Also, we discuss about some synthetic and the natural polymer, that is the cellulose and polythene. In next video we discuss about the classification of polymer. The polymer can be classified on the basis of its origin, on the basis of the structure, mode of synthesis, and intermolecular forces, and the composition of polymer. This is the 5 main classification of polymer on the basis of origin and on the basis of the structure, that already we discussed in the previous lecture. On the basis of origin, this is the 3 main sub classification, that is the natural polymers, semi-synthetic polymers and synthetic polymer. नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. ओनली वी हैव टू समराइज हियर. नेचुरल पॉलीमर, द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, दैट इज फ्रॉम द लिविंग सेल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. द एग्जांपल्स आर द रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड. सेकंड हमने देखा था दैट इज द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. इट इज ऑल्सो द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द origin from the nature, or only some chemical modification to increase its property. Examples are the cellulose diacetate, cellulose nitrate, vulcanized rubber. Third one, semi-synthetic polymer. It is totally synthesized in the laboratory. Examples are the polyethylene, polystyrene, bakelite, terylene, nylon. These all are the examples. And which monomer used in that polymer, that also we discussed in the previous lecture. These all are some images of the polythene, Teflon tape, PVC. Again, the next classification based on the structure. On the basis of the structure, the polymer can be divided into 3 sub classification, that is the linear chain polymer, branch chain polymer, and the cross link or network polymer. Linear chain polymer क्या होती है? It is the polymer, it is made up from the long chain of polymer होती है, and the arrangement, it is the compactly arrangement होती है. Due to this वॉल्यूम कम होता है एंड द डेंसिटी इंक्रीज होती है. अंडर दिस हेडिंग हमने एग्जांपल्स देखे थे लॉन्ग लीनियर चेन पॉलीमर के, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन एंड पॉलिस्टर. सेकंड देखा था क्लासिफिकेशन, दैट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है? मेन चेन विद सम ब्रांचेस. ड्यू टू दिस ब्रांचेस, ये 2 ब्रांचेस पास आने के कारण रिपेल ईच अदर, वॉल्यूम इंक्रीज, डेंसिटी कम होती है. तो अगर हमारा पॉलीइथिलीन है तो इट विल फॉर्म दी लो डेंसिटी पॉलीमर. हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर, इट इज द हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन. इट इज द एग्जांपल ऑफ द लीनियर चेन पॉलीमर. एंड लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, इट इज द एग्जांपल ऑफ द ब्रांच चेन पॉलीमर. ग्लाइकोजन, स्टार्च, इट इज ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन पॉलीमर. देन नेक्स्ट हमने देखा था क्रॉस लिंक पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर. हियर द मेन ब्रांचेस विद द, यहाँ पे क्या है, द पॉलीमर चेन लिंक विद द केमिकल बॉन्डिंग. इट इज नॉट द ब्रांच, इट इज जस्ट अ केमिकल बॉन्डिंग. ये केमिकल बॉन्डिंग है. ड्यू टू दिस इट इज द क्रॉस लिंक बोला है इस पॉलीमर को. एंड ड्यू टू दिस इट्स इज द हाईली स्ट्रेंथ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होता है कंपेयर टू द लिनियर चेन पॉलीमर एंड ब्रांच चेन पॉलीमर. एग्जांपल ऑफ द क्रॉस लिंक पॉलीमर और नेटवर्क पॉलीमर है बैकेलाइट, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड. तो बैकेलाइट हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में. द बैकेलाइट, इट इज द मेड अप फ्रॉम द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इज द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन. दिस ऑल we discuss in the previous lecture. Okay, today we discuss about the next classification, that is the classification of the polymer based on the mode of synthesis. The process we use to synthesize the polymer, which process we use in the synthesize the polymer. On the basis of that process, it is divided into two sub classification, that is the addition polymers and the condensation polymer. So what is the basic difference between the addition polymers and condensation polymer, that we will discuss in detail. See dear student, addition polymerization की definition क्या होती है? It is the repeated addition of monomer molecule, repeatedly addition of monomer molecule with no loss of small molecule. यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं होता है. रिपीटेडली एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल होता है. कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अल्कोहल और अमाइंस के फॉर्म में लॉस नहीं होता है. तो यहाँ पे जो मोनोमर यूज होता है ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, द मोनोमर विद द पाई बॉन्डिंग. तो मोनोमर में पाई बॉन्डिंग होना नेसेसरी है इन एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो हियर मैंने लिखा है, देखिए पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर विद द डबल और ट्रिपल बॉन्ड. मीन्स मोनोमर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्डिंग होना जरूरी है.
तो सम आर द एक्सेप्शंस ऑल्सो, हम ये नहीं बोल सकते कि दीज ऑल आर दी कंटेनिंग दी डबल और ट्रिपल बॉन्ड. सी हियर अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखे है दैट इज दी हैव सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला एज देयर मोनोमर. मीन्स दी उसका जो इम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा पॉलीमर का सेम एज दी मोनोमर रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज देर विल बी दी नो लॉस ऑफ, कुछ लॉस ही नहीं होगा. तो वट एवर दी मोनोमर में जितने नंबर ऑफ उसका इम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा सेम हमारा किस में रहेगा? पॉलीमर में. सी हियर द एग्जांपल ऑफ दी एडिशन पॉलीमर. हमने जनरल एग्जांपल लिया है अल्कीन. अल्कीन लिया है, हियर विल बी डबल बॉन्ड. तो हम इसको इथिलीन भी कह सकते हैं, स्टाइरिन भी कह सकते हैं, एक्रेलोनाइट्राइल भी कह सकते हैं और विनाइल क्लोराइड. तो कैसे? देखिए हियर व्हेन दिस Y विल बी रिप्लेस विद हाइड्रोजन तो इट फॉर्म दी अल्कीन. तो अल्कीन कौन सा रहेगा? इथिलीन. तो इथिलीन इफ वी पॉलीमराइज दैट इथिलीन इट विल फॉर्म दी पॉलीथीन. If we replace, means it is also the addition polymer. See here, it is the pi bonding. This pi bonding breaking, breakage of this pi bonding break होंगी and it will be addition at the repeatedly addition of the monomer molecule. सेकंड है मैंने बोला है दैट इज दी इफ Y इज रिप्लेस विद द CH3, एक कार्बन बढ़ जाएगा तो इट इज दी पॉलीप्रोपिल, इट इज दी प्रोपिलिन मोनोमर एज ए प्रोपिलिन. उसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीप्रोपिलिन. ठीक है. इफ द Cl, अगर हमने Y को Cl से रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा? इट इज द विनाइल क्लोराइड. तो विनाइल क्लोराइड इट इज द मोनोमर ऑफ द पॉलीविनाइल क्लोराइड. मोनोमर किसका रहेगा? वो विनाइल क्लोराइड. इट इज द पॉलीमर पीवीसी का मोनोमर रहेगा. इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन. स्टाइरिन. स्टाइरिन मीन्स दी इफ द Y इज रिप्लेस विद द फिनाइल ग्रुप तो उसको कहा जाता है स्टाइरिन. इज द C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका स्टाइरिन रहेगा. उसको पॉलीमराइज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पॉलीस्टाइरिन. उसी तरह से दिस Y विल बी रिप्लेस विद दी CN. Y को अगर हमने CN से रिप्लेस कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? एक्रेलोनाइट्राइल. तो एक्रेलोनाइट्राइल को पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉली एक्रेलोनाइट्राइल आपका बनेगा. दिस इज दी पॉलीमर ऑफ दी इथिलीन. पॉलीथीन है ये. इट इज दी पॉलीमर. इस तरह से ये लिंकेज बनती जाएंगी बाय दी ब्रेकिंग ऑफ दी पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस तरह से मोनोमर रिपीटेडली एडिशन होती जाएंगी. दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द इमेज ऑफ द PVC पाइप हम यूज करते हैं, आपको पता है. दिस इज द पॉलीथीन. ओके. दिस इज ऑल्सो द अनदर एग्जांपल ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन. सी हियर प्रीवियस स्लाइड में भी हमने देखा था स्टाइरिन. मैंने कहा था आपको स्टाइरिन कैसे क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. मेनी मीन्स n नंबर ऑफ मोनोमर. कौन से मोनोमर है? स्टाइरिन के. अगर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दी पॉलीमर तो कौन सा पॉलीमर बना है? इट इज दी पॉलीस्टाइरिन. सी हियर देयर विल बी नो लॉस. कुछ भी हमने साइड प्रोडक्ट लिखा है क्या? प्लस करके नहीं लिखा है. दैट प्रोसेस इट इज नोन एज दी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस. हियर see here the condensation polymerization, it is also the classification based on the mode of synthesis. This is the second sub classification, condensation polymerization. So what is the basic difference between the addition polymerization and condensation polymerization? See here, in polymer formed by the combination of the monomer का combination होता है with the elimination of small molecule. Remind the previous definition for the addition polymer. There will be no elimination of small molecule, but here is the elimination of small molecule. कुछ तो भी side product बनता है. And the monomer are the bifunctional and trifunctional. उसमें functional group होना जरूरी है in the monomer. किसके लिए? In condensation polymerization. तो small molecule कौन से फॉर्म में निकलता है? Elimination of small molecule like water, alcohol and amines. एंड अगेन हम उसका एक पॉइंट देख सकते हैं दैट नॉट हैविंग द सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला एज देयर मोनोमर. हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या देखा था? हैविंग द सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला एज देयर मोनोमर. बिकॉज इन एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या था? नो लॉस ऑफ एनी स्मॉल मॉलिक्यूल, बट हियर देयर विल बी द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस नॉट हैविंग द सेम इम्पेरिकल फॉर्मूला एज देयर मोनोमर. See here the example of the condensation polymerization. Nylon 6,6, polyester, these all are the examples of the condensation polymerization. This nylon 6, it is the synthesized from the adipic acid and hexamethylene diamine. This also we discussed in the previous slide. हमने बोला था कि nylon 6 में और nylon 6,6 में कौन से मोनोमर यूज होते हैं? See here, adipic acid and hexamethylene diamine join होके हमको मिलता है पॉलीमर. दैट पॉलीमर इट इज द nylon 6,6. तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर. अगर हमारे पास इफ यूज दी टू डिफरेंट मोनोमर, यहाँ पे देखिए दिस इज द एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइमीन, दोनों डिफरेंट मोनोमर है तो इट इज द टाइप ऑफ द कोपॉलीमर. कोपॉलीमर का टाइप है.
तो एडिपिक एसिड में हमने इसमें भी बोला था कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होना चाहिए, मोनोमर मस्ट कंटेनिंग दी फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप है एडिपिक एसिड में, और हेक्सामिथिलीन डायमीन में अमाइन एज अ फंक्शनल ग्रुप है। तो हियर इज दी लॉस ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, when the condensation process takes place, this OH from the COH group and H from the NH2 will loss and it will form the polymer। यहाँ पे देखिए लॉस दिखा है, वाटर मॉलिक्यूल निकला है, इट इज द कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या है, दिस चेन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, कंटिन्यूसली ये लॉन्ग चेन आपकी क्या होंगी, ये चेन कैसे बनते ही जाएंगी, बिकॉज इन एडिपिक एसिड 2 फंक्शनल ग्रुप इज एक्टिव, 1 फंक्शनल ग्रुप इज रिएक्ट विद दिस hexamethylene diamine, again this second one is the active, वो अगेन सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एडिपिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, दिस एडिपिक एसिड अगेन रिएक्ट विद द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ द हेक्सामिथिलीन डायमाइन। इस तरह से ये चेन क्या हो जाएंगी, इस तरह से आपकी चेन लेंथ बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दिस इज द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, दिस इज द नाइलॉन 6,6 पॉलीमर सिंथेसाइज फ्रॉम द एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन with the loss of small molecule क्या निकला है, water। polyester, it is also the example of the condensation polymerization। Here polyester is made up from the synthesized from the terephthalic acid and the glycol, ethylene glycol। तो यहाँ पे डायबेसिक एसिड है, तो एसिड में से क्या जाएगा, OH ग्रुप एंड हाइड्रोजन फ्रॉम दी ग्लाइकॉल, रिमूव होके क्या मिलेगा हमको, साइड प्रोडक्ट वाटर, एंड दिस इज दी, एक ही दोनों ही मॉलिक्यूल को ज्वाइन किया है, दिस इज दी पॉलीएस्टर, ओके। Most of the time in examination they ask the write down the difference between the addition polymer and condensation polymer, and that we will discuss now। See dear student, that what is the difference between the condensation polymer and addition polymer। by definition हम क्या बोल सकते हैं, different monomer, या फिर हम बोल सकते हैं repeatedly addition of monomer, या फिर different monomer add to form a polymer having the same molecular formula of the repeating structure unit as that of the starting मोनोमर, उसका जो भी इंपेरिकल फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द स्टार्टिंग मोनोमर। बट यहाँ पे क्या रहेगा, कंडेंसेशन पॉलीमर में उसी का पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर कंबाइंड विद द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या लॉस होगा, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड अल्कोहल टू फॉर्म ऑफ पॉलीमर। तो यहाँ पे पॉलीमर बनेगा, बट द पॉलीमर हैविंग द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट दैन दैट ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। सेम रहेगा क्या स्टार्टिंग मटेरियल के जैसे, मोनोमर के जैसे नहीं रहेगा, बिकॉज देयर विल बी लॉस ऑफ सम स्मॉल मॉलिक्यूल। सेकंड पॉइंट क्या बोला है एडिशन पॉलीमराइजेशन में, नथिंग इज लॉस्ट ड्यूरिंग द पॉलीमराइजेशन, कुछ लॉस नहीं होगा, रिपीटेडली एडिशन ही होगा। बट हियर द लॉस ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया एंड अल्कोहल, ये बेसिक डिफरेंस है। थर्ड वन, जनरली इन्वॉल्व्स दी वन टाइप ऑफ मोनोमर, वन टाइप ऑफ मोनोमर, इसमें एक ही टाइप का मोनोमर होता है, तो हम बोल सकते हैं होमोपॉलीमर, इट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल, सम एक्सेप्शंस आर देयर आल्सो, तो मीन्स हम यहाँ पे अभी बोल सकते हैं होमोपॉलीमर इट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन पॉलीमर, इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर हम यूज करते हैं। और इन्वॉल्व्स द 2 मोनोमर, हमने बोला था 2 मोनोमर अगर इन्वॉल्व होते हैं, 2 डिफरेंट मोनोमर, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज द कोपॉलीमर, मीन्स द कोपॉलीमर इट इज द एग्जांपल ऑफ द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, हम इसको बोल सकते हैं। ऑल्सो मोनोमर जनरली कंटेनिंग द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मीन्स पाई बॉन्ड होना जरूरी है एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए, हमने कंडीशन देखी थी। यहाँ पे मोनोमर विद द फंक्शनल ग्रुप, मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होना, डाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शन होना जरूरी है। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अंडर द हेडिंग ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे, पॉलीथीन, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीपी मीन्स द पॉलीप्रोपाइलिन, इट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन पॉलीमराइजेशन। और सी हियर in all these polymer monomer having the pi bonding है, polyethylene, ethylene as a monomer, PVC, polyvinyl chloride, vinyl chloride as a monomer and polypropylene, propylene as a monomer, सभी में क्या है pi bonding है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, इसमें एग्जांपल हम देखें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव होता है, बैकेलाइट एंड टेरिलिन, टेरिलिन इट इज नथिंग बट द पॉलिस्टर। तो बैकेलाइट हमने देखा था, बैकेलाइट क्या होता है, इट इज द पॉलीमर ऑफ द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, इट इज द फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड का कंडेंसेशन होके क्या मिलता है हमको, बैकेलाइट मिलता है विद द लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। when we synthesize the polymer chain, there will be some forces. On the basis of that forces, it will be classified into 4 types. So dear student, this classification we will discuss in the next class.
Okay. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you, dear student.